Good morning, students. Welcome to the next lecture of History, Class 10, Chapter number 1, The Rise of Nationalism in Europe. So today we'll go through the topic Hunger, Hardship and Popular Revolt. So let us first understand the meaning of this topic. Hunger, in Hindi it is called bhook. Hardship means kast, musibat, and revolt means withdraw. So we'll study about what happened in that time in Europe which caused this kind of hardship. So I'll read through it. I hope you are ready with your books, and let's go ahead. The 1830s were years of great economic hardship in Europe. Economic hardship, economic का मतलब होता है related to money. So the people there were in a big trouble related to money because they were not earning enough, and even if they were earning, most of it was going into taxes and other things. So the first half of the 19th century saw an enormous increase in population all over Europe. The life expectancy of the people in Europe increased in 1815 and afterwards. So there was a very rapid increase in the population of European region. So as more number of peoples were born and they were the part of population, more resources were required for them to live their life. Food, water, shelter, everything was required in more quantity, more numbers. So it actually the resources are limited, and if more number of people are claiming it, then there will be hardship, economic hardship. So this happened. In most countries, there were more seekers of job than employments. Seek का मतलब है चाहना. तो बहुत सारे ऐसे जगह थे, बहुत सारे देश थे जहाँ पे काम कम था और काम मांगने वाले ज़्यादा थे, और गांव में भी काम, खेती बाड़ी का काम कम हो गया, तो लोग वहाँ से माइग्रेट करने लगे शहर में. इन पॉपुलेशन फ्रॉम रूरल एरियाज माइग्रेटेड टू सिटीज़ टू लिव इन ओवर क्राउडेड स्लम्स. अब शहरों में तो जगह नहीं है, सो व्हाट हैपेंड, वो झुग्गी झोपड़ियों में ओवर क्राउडेड जगह पे रहने लगे. स्मॉल प्रोड्यूसर्स इन टाउन्स were often faced with stiff competition from imports of cheap machine-made goods from England, where industrialization was more advanced than on the continent. So there was a very stiff competition from the industrialized area. तो जो छोटे छोटे प्रोड्यूसर थे, उत्पादक थे, वो अपना सामान बनाते थे, छोटे छोटे वर्कशॉप्स में बनाते थे, हाथ से बनाते थे और उसे बेचने की कोशिश करते थे. लेकिन उनके देशों में इंग्लैंड से फैक्ट्री मेड, मशीन मेड मटेरियल ज़्यादा आने लगे, और जो मशीन मेड है वो दाम में सस्ता होता है. तो वो बहुत ज़बरदस्त कंपटीशन होने लगा उनके प्रोडक्ट्स में और जो इंग्लैंड से इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स थे उसमें. तो इसके कारण उनकी बिक्री भी कम हो गई, द स्मॉल लोकल प्रोड्यूसर्स की. दिस वॉज स्पेशली सो इन टेक्सटाइल प्रोडक्शन, और ख़ास तौर पे किस पे सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ा, टेक्सटाइल, कपड़े के उद्योग में सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ा. क्यों? क्योंकि वो ज़्यादातर जो कपड़े का प्रोडक्शन होता था वो हैंडलूम से छोटे घरों में थोड़े थोड़े क्वांटिटी में बना करता था मेनलैंड यूरोप में, जबकि इंग्लैंड में वो बड़े बड़े मिलों में बनता था और लार्ज क्वांटिटी में बनता था. जब लार्ज क्वांटिटी में चीज़ें बनती हैं तो प्रोडक्शन कॉस्ट कम पड़ता है, सस्ता हो जाता है. तो उनको सबसे ज़्यादा परेशानी हुई, यूरोप के जो टेक्सटाइल प्रोड्यूसर्स हैं उनको ज़्यादा परेशानी हुई इससे. So this was especially so in textile production, which was carried out mainly in homes or small workshops and was only partly mechanized. In those regions of Europe where the aristocracy still enjoyed power, peasants struggled under the burden of feudal dues and obligations. अब ज़मींदारी सिस्टम वैसे तो ज़्यादातर जगह से हट गई थी, लेकिन ऐसे यूरोप में ऐसे भी जगह थे जहाँ वो still it was prevalent, the feudal system was still prevalent. तो वहाँ के किसान बोझ के तले दबे हुए थे, टैक्सेस के, ड्यूज़ के, सर्फडम के. So there was burden of dues. Burden का मतलब है बोझ. So
दे स्ट्रगल टू पे द फ्यूडल ड्यूज एंड ऑब्लिगेशंस, जो देनदारी थी उसको पूरा करने में उनको बहुत मुसीबत झेलनी पड़ी। और बैड हार्वेस्ट, यानी कई बार ऐसा होता है कि फसलें ख़राब हो जाती हैं बिकॉज ऑफ मैनी रीजंस, मौसम ख़राब था ये सब। बैड हार्वेस्ट जब भी होता है तो लोगों में खाने की कमी हो जाती है, और खाने की अगर कमी हो गई, कोई चीज़ कम हो गया तो उसके दाम बढ़ जाते थे। सो देयर वाज अ ह्यूज rise in food price on those years where there was bad harvest. So the rise of food prices or a year of bad harvest led to widespread pauperism in town and country. So there was pauperism का मतलब होता है मफलिसी, कंगाली, गरीबी। इसके कारण में जब ये बैड हार्वेस्ट होते थे या फूड के प्राइस इंक्रीज़ हो जाते थे तो आम तौर पे लोग बहुत ज़्यादा गरीब हो जाते थे, चाहे वो शहर हो या गांव हो। सो देयर वाज एन ईयर 1848 विच इज़ ऑफ वेरी बिग इम्पोर्टेंस in the history of Europe, because what happened in 1848, there was a big change in Paris. Let's read through it to understand it. The year 1848 was one such year. There was bad harvest, food shortages and widespread unemployment brought the population of Paris out on the roads. Bad harvest था, फसलें ख़राब हो गई थी, खाने की कमी हो गई थी, खाने की कमी होने से खाने के दाम बढ़ गए थे, अनएम्प्लॉयमेंट था, इसके कारण लोग सड़कों पे आ गए। वो एक तरीके से विद्रोह चालू कर दिया, हंगामा चालू कर दिया, और उसका असर ये हुआ कि जगह जगह बैरिकेड्स तो लगे, लेकिन उस समय के जो मनार्क थे, उनका नाम था लुई फिलिप, हमने पहले पढ़ा है। ही वॉज फोर्स टू फ्ली, उनको भागने पे मजबूर होना पड़ा। सो ही फ्लेड पेरिस एंड ही एब्डिकेटेड हिज थ्रोन, उसने अपनी गद्दी छोड़ दी, वो भाग गया वहाँ से। एंड देन व्हाट हैपेंड वाज देयर वाज अ नेशनल असेंबली, एंड दैट नेशनल असेंबली प्रोक्लेम्ड फ्रांस एज आ रिपब्लिक। ओके, सो नेशनल असेंबली प्रोक्लेम्ड अ रिपब्लिक, ग्रांटेड, वो उसने फ्रांस को रिपब्लिक बना दिया, यानी गणतंत्र बना दिया। And what they did was they granted suffrage to all men over 21 years. Suffrage means the right to vote. What they did was सारे जितने भी पुरुष थे, वो जो भी, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, किसी भी, इससे पहले क्या था, मनी के हिसाब से लोगों को सफरेज मिलता था, पैसा कौन कितना अमीर है, कौन गरीब है तो नहीं मिलेगा, अमीर है तो मिलेगा। बट देन इट वॉज चेंज्ड, ऑल मैन वेर गिवन द राइट टू वोट who were above 21 years, and there was another guarantee given for the right to work. उनके वहाँ के लोगों को एक गारंटी दी गई थी, उनको काम करने का अधिकार मिल रहा था। उसको काम कैसे देंगे? नेशनल वर्कशॉप्स टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट वेयर सेटअप, तो एक राष्ट्रीय वर्कशॉप्स, नए नए कल कारखाने खोलने की कोशिश की गई ताकि वहाँ के लोगों को रोज़गार दिया जा सके, एम्प्लॉयमेंट दिया जा सके। इससे पहले एक और रेवोल्यूशन हुआ था, एक आई विल नॉट से इट वाज अ रेवोल्यूशन, इट वाज अ रिवोल्ट, एक विद्रोह हुआ था, विच हैपेंड इन 1845, एंड दिस रिवोल्ट हैपेंड इन अ प्लेस इन अ रीजन कॉल्ड सिलेसिया। सिलेसिया आज मॉडर्न डे में इट इज़ पार्ट ऑफ द पोलैंड का एक हिस्सा है, थोड़ा सा हिस्सा सिलेसिया का जर्मनी में भी है और थोड़ा चेक रिपब्लिक में है। सो दैट सेंट्रल यूरोपियन रीजन वाज कॉल्ड सिलेसिया। सो दे वर वीवर्स, जो बुनकर थे, उन्होंने ये विद्रोह किया। अब वो क्यों किया उसको हम थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं। अर्लियर इन 1845 वीवर्स इन सिलेसिया had led a revolt against contractors who supplied them raw materials and gave them orders for finished textiles but drastically reduced their payments. तो सिलेसिया में जो वीवर्स थे, वो उनको काम देने के लिए कॉन्ट्रैक्टर्स होते थे, जो एक एजेंट होते थे। वो एजेंट क्या करते थे, वो या तो वो उन जो वीवर्स थे उनको रॉ मटेरियल, कच्चा माल सप्लाई करते थे, और साथ ही साथ उनको ऑर्डर्स देते थे, टेक्सटाइल का ऑर्डर्स देते थे, ताकि वो जब वीवर्स उनको बना लेते थे तो वो जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उसको ख़रीद लेते थे और मार्केट में बेचते थे। तो इनसे प्रॉब्लम क्या थी, ये इनके या तो रॉ मटेरियल को महंगा बेचते थे या जो फिनिश प्रोडक्ट्स था उसको सस्ता खरीदने की कोशिश करते थे। तो इन्होंने क्या किया कि बीच में उन्होंने उसके दाम बहुत घटा दिए। इससे
जो वीवर्स थे उनको काफ़ी इकोनॉमिक हार्डशिप हुई और उन्होंने वहाँ पे एक तरीके से रिवोल्ट कर दिया वहाँ पे. सो द जर्नलिस्ट विलहेल्म वुल्फ डिस्क्राइब द इवेंट्स इन सिलेसियन विलेज एज फॉलोज. तो एक जर्नलिस्ट है विलहेल्म वुल्फ, उन्होंने अपने एक अखबार में छापा उस समय के जो सिचुएशन था उसको. उन्होंने लिखा, इन दीज विलेजेस विथ 18,000 inhabitants, कॉटन वीविंग इज़ द मोस्ट वाइड स्प्रेड ऑक्यूपेशन. तो इन गाँव में जहाँ की आबादी होगी 18,000 से ज़्यादा, 18,000 इनहिबिटेंट्स थे, उनका मुख्य काम क्या था? मुख्य उनका पेशा था कॉटन वीविंग. द मिजरी ऑफ द वर्कर्स इज़ एक्सट्रीम. जो वर्कर्स हैं उनमें जो तकलीफ़ है वो बहुत ज़्यादा है. द मिजरी इज़, जो दुख दर्द है वो बहुत ज़्यादा है. द डेस्परेट नीड्स फॉर जॉब्स हैज़ बीन टेकन एडवांटेज ऑफ बाय द कॉन्ट्रैक्टर्स टू रिड्यूस द प्राइस ऑफ गुड्स दे ऑर्डर. अब काम की कमी है और उनको काम की ज़रूरत है, ये चीज़ें कॉन्ट्रैक्टर्स भली भांति जान गए और वो उनका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं. वो क्या कर रहे हैं कि कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि काम की कमी है, ज़्यादा से ज़्यादा बनकर काम चाहते हैं, तो कम से कम दाम में उनको ऑर्डर देने की कोशिश कर रहे हैं. तो ऑन June 4 at 2 p.m. a large crowd of weavers emerged from their homes and marched in pairs up to the mansion of their contractors demanding higher wages. तो 2 जून को 2 बजे दोपहर में बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा हो गई वीवर्स की, और इन कॉन्ट्रैक्टर्स के बंगले, मैंशंस यानी बहुत बड़े घर हुआ करते थे, वहाँ जाके उनके उस घर के सामने वो खड़े हो गए और डिमांड करने लगे, हमें ज़्यादा पैसे दीजिए, हायर वेजेस दीजिए. सो दे वर ट्रीटेड विथ स्कॉन एंड थ्रेट्स अल्टरनेटिवली. है तो उनके साथ कैसा व्यवहार हुआ? पहले तो उनसे घृणा, स्कॉन, हाँ, उनसे घृणा करके उनके साथ में व्यवहार किया गया, और उसके बाद जो उनसे नहीं माने लोग तो उनको धमकी भी दी गई. अल्टरनेटली कभी उनको दुत्कार दिया जाता था या फिर उनको धमकी दी जाती थी. इससे उनके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा उत्पन्न हो गया. फॉलोइंग दिस अ ग्रुप ऑफ देम फोर्स्ड देयर वेज इनटू द हाउस, स्मैश्ड इट्स एलिगेंट विंडो पैन्स, फर्नीचर्स, पोर्सलेंस. तो इसका असर ये हुआ कि उन लोगों को गुस्सा आ गया, उन लोगों ने हमला कर दिया उनके घरों में, और उनके घर के अंदर घुस गए वो ज़बरदस्ती. जो उनकी खिड़कियां थी, बहुत महंगी महंगी जो सामान थे, चीनी मिट्टी के सामान थे, फर्नीचर्स थे, उनको सबको तोड़ दिया. Another group broke into the storehouse and plundered it of supplies of cloth which they tore to shred. उनमें से जो दूसरा ग्रुप था वो उन्होंने हमला कर दिया, उनके स्टोर हाउस में घुस गए और लूट मचा दी, और उनके अंदर जो सप्लाई था, क्लोथ सप्लाई था, उसको टुकड़े टुकड़े कर दिए, फाड़ के फेंक दिया उनको, टुकड़े टुकड़े कर दिए. तो जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे वो डर गए और वो वहाँ से भागे. The contractor fled with his family to a neighboring village. तो वो पड़ोसी गांव में अपने परिवार के साथ वो भाग गया, लेकिन पड़ोसी गांव वालों ने उसे अपना शेल्टर नहीं दिया. Which however refused to shelter such a person. तो उनको वो शेल्टर नहीं मिला, लेकिन उसका एक असर ये हुआ कि 24 घंटे बाद वो वापस आया और अपने साथ आर्मी लेके आया, और उसके बाद में वहाँ पे ज़बरदस्त हिंसा हुई, वायलेंस हुआ, उसमें काफ़ी सारे वीवर्स को गोली मार दी गई. ही रिटर्न 24 hours later हैविंग रिक्वेशन्ड द आर्मी, है ना, वो आर्मी के साथ वापस आए. इन द एक्सचेंज दैट फॉलोड 11 वीवर्स वेयर शॉट. और इसमें बाद में जो युद्ध हुआ, उनके बीच में जो झड़प हुई, उसमें 11 जो बनकर थे उनको गोली मार दी गई. So this happened in 1845 in Silesia. So this started the upheaval, and then it ended with this 1848. In 1848 in Paris, the monarch was forced to flee and abdicate, and it became a republic. So this started a very big process in Europe. उसको हम आगे पढ़ते हैं. 1848, the revolution of liberals. So this started a chain of activities. 1848 event started a chain of activities in which liberals took part
in a major way. So parallel to the revolts of the poor, unemployed and starving peasants and workers in many European countries in the year 1848, a revolution led by the educated middle classes was underway. तो जैसा ये जो गरीब, अनएम्प्लॉयड और भूखे किसानों ने और मज़दूरों ने यूरोपियन कंट्रीज़ में 1848 में जो रेवोल्यूशन किया, उसी के जैसा एक रेवोल्यूशन एजुकेटेड मिडिल क्लास भी कर रही थी. द इवेंट्स ऑफ February 1848 in France had brought about the abdication of the monarch and a republic based on universal male suffrage had been proclaimed. तो फ्रांस में जो 1848 फरवरी 1848 में घटना हुई जिसमें राजा को अपनी गद्दी छोड़ के जाना पड़ा और इट बिकेम रिपब्लिक, एक गणतंत्र बन गया जिसमें यूनिवर्सल मेल सफरेज आया. यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज नहीं है ये, यूनिवर्सल मेल सफरेज यानी सभी पुरुषों को वोट देने का अधिकार मिला जो 21 साल से ऊपर थे. तो इससे जो बाकी जो यूरोप की जो देश थे वो अपने आप को एक इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट बनाना चाहते थे और इसका जो एक साइकिल है स्टार्ट हो गया. दे वर ऑल्सो रूल्ड बाय मोनार्क्स एंड दे वांटेड दैट दिस कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म शुड कम एंड दिस विल बी ऑल्सो a process in which we'll do national unification. So in other parts of Europe where independent nation states did not yet exist, and which were these countries like Germany, Italy, Poland and Austro-Hungarian Empire, men and women of the liberal middle class combined their demands of constitutionalism with national unification. तो ऐसे जो लिबरल मैन एंड वीमेन थे उन्होंने अपना डिमांड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म और नेशनल यूनिफिकेशन दोनों होना चाहिए ये डिमांड करने लगे. दे टुक एडवांटेज ऑफ द ग्रोइंग पॉपुलर अनरेस्ट टू पुश देयर डिमांड्स फॉर द क्रिएशन ऑफ अ नेशन स्टेट ऑन पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल. तो उन्होंने जो मौजूदा हालात हैं उसका फ़ायदा उठाया क्योंकि बहुत अनरेस्ट था, पॉपुलर अनरेस्ट था. तो उन्होंने एक जो अपने जो डिमांड था कि क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट ऑन पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स. अब पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स क्या हैं? हाँ, सबसे पहले एक देश को चलाने के लिए एक संविधान होना चाहिए. सो द फर्स्ट प्रिंसिपल इज देयर शुड बी अ कॉन्स्टिट्यूशन. देन सेकेंड वॉज टू actually popularize the voice of people, the press should be free. So there should be freedom of press and there should be freedom of association. इकट्ठा होने का, एक ग्रुप बनाने का, क्लब बनाने का, पार्टी बनाने का अधिकार उनको होना चाहिए. This is the basis of the parliamentary, the principles of parliamentary governance. So this started with the German regions. जो जर्मन रीजन्स में जो लिबरल्स थे उन्होंने एक तरीके से इसको स्टार्ट किया. इन द जर्मन रीजन्स अ लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल एसोसिएशंस हुज मेंबर्स वर मिडिल क्लास प्रोफेशनल्स, बिजनेसमैन एंड प्रॉस्परस आर्टिजन्स केम टुगेदर इन द सिटी ऑफ फ्रैंकफर्ट एंड डिसाइडेड टू वोट फॉर एन ऑल जर्मन नेशनल असेंबली. तो जितने भी जर्मन स्पीकिंग एरियाज थे वहाँ के जो उन लोगों ने बहुत सारे पॉलिटिकल एसोसिएशंस बना के रखे थे और वहाँ के जो मिडिल क्लास मैन थे जैसे कि मिडिल क्लास प्रोफेशनल्स में कौन होंगे, जैसे हम लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे, प्रोफेसर्स, टीचर्स, क्लर्क्स, बैंक ऑफिशियल्स, ये लोग बिजनेसमैन्स एंड प्रॉस्परस आर्टिजन्स, जो कारीगर थे, जो धनी कारीगर थे, वो लोग एक साथ आए एक शहर में, जर्मन एरिया के शहर का नाम है फ्रैंकफर्ट. क्यों मिले इकट्ठे हुए कि एक नेशनल असेंबली बनाएंगे और नेशनल असेंबली क्या करेगी, वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की कोशिश करेगी. सो एंड डिसाइडेड टू वोट फॉर एन ऑल जर्मन नेशनल असेंबली. ऑन 18 May 1848 831 elected representatives marched in a festive procession to take their places in the Frankfurt Parliament convened in the Church of St. Paul. तो 18 May 1848 को 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हुए जर्मन एरियाज़ के 831, वो बड़े गाजे बाजे के साथ वो गए सेंट पॉल चर्च में. सेंट पॉल चर्च में ये पहला फ्रैंकफर्ट
पार्लियामेंट कन्वीन होना था, तो वहाँ पे वो क्या करने वाले थे, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले थे. दे ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर ए जर्मन नेशन टू बी हेडेड बाय अ मोनार्की सब्जेक्ट टू अ पार्लियामेंट. तो वो चाहते थे एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना फॉर ऑल जर्मन एरियाज विच विल बी लेड बाय अ मोनार्क. हाँ, उसका जो लीडर होगा वो तो मोनार्की होगा, बट ही विल बी सब्जेक्ट टू अ कॉन्स्टिट्यूशन, अ पार्लियामेंट. ही विल बी सब्जेक्ट टू अ पार्लियामेंट. एक संसद ही वहाँ का सरकार चलाएगी. When the deputies offered the crown on these terms to Frederick Wilhelm IV, the King of Prussia, he rejected it and joined other monarchs to oppose the elected assembly. जब ये कुछ जो 831 रिप्रेजेंटेटिव्स के कुछ डेप्यूटीज़, उन्होंने प्रशिया के जो मोनार्क थे विल्हेल्म IV, फ्रेडरिक विल्हेल्म IV, उनको ये ऑफ़र दिया कि आप राजा बन जाओ इस नेशनल असेंबली के, इस जर्मन एरिया के. तो वो जो किंग था प्रशिया का, उसने उसको आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया, मना कर दिया, और दूसरे जो मोनार्क्स थे उन जर्मन रीजन्स के, उनके साथ वो मिल गया ताकि इस इलेक्टेड असेंबली का विरोध कर सके. वाइल द अपोजिशन ऑफ द एरिस्टोक्रेसी एंड मिलिट्री बिकेम स्ट्रॉन्गर, द सोशल बेसिस ऑफ पार्लियामेंट इरोडेड. लेकिन धीरे धीरे जो इनका जो अपोजिशन जो था, इनको कौन विरोध कर रहा था, जो एरिस्टोक्रेट्स थे, जो मिलिट्री थी, वो इस नेशनल असेंबली के ख़िलाफ़ थे, उनका विरोध कर रहे थे. लेकिन जो उनका जो ये जो पार्लियामेंट बनाने का जो सोशल बेसिस था, वो धीरे धीरे समय के साथ में ख़त्म हो गया, क्योंकि दे वर डोमिनेटेड बाय मिडिल क्लास पीपल, बिजनेसमैन, प्रोफेशनल्स, और उनका जो ध्यान अपना फ़ायदा देखने की तरफ ज़्यादा था. गरीबों का और जो वीवर्स थे या जो पीजेंट्स थे, जो आर्टिजन्स थे, उनके तरफ उनका ध्यान नहीं गया. द पार्लियामेंट वॉज डोमिनेटेड बाय मिडिल क्लासेस हु रेजिस्टेड द डिमांड्स ऑफ वर्कर्स एंड आर्टिजन्स एंड कॉन्सिक्वेंटली लॉस देयर सपोर्ट. जैसे कि मैंने बताया, दिस पार्लियामेंट वॉज ओवरवेलमली डोमिनेटेड बाय मिडिल क्लास पीपल, मिडिल क्लास. तो उन्होंने जो गरीबों के, जो मज़दूरों के, जो आर्टिजन्स के जो डिमांड थे, उसको अनदेखा कर दिया, और धीरे धीरे इन लोगों से उनको सपोर्ट मिलना बंद हो गया. इन द एंड ट्रूप्स वेर कॉल्ड इन एंड द असेंबली वॉज फोर्स्ड टू डिस्पेंड. और अंत में ऐसा हुआ कि मिलिट्री ट्रूप्स आ गए और इस असेंबली को अपना सब काम छोड़ के उनको डिस्पर्स होना पड़ा, भागना पड़ गया, डिसबैंड हो गए वो. The issue of extending political rights to women was a controversial one within the liberal movements, in which large number of women had participated actively over the years. इनमें से एक इशू और भी था इसके फेल होने का, कि इसमें एक इशू था कि विमेन उसमें पार्टिसिपेट तो करती थी, लेकिन इनके पास पॉलिटिकल राइट्स नहीं थी, और ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल इशू था विद इन द लिबरल मूवमेंट. Women had formed their own political associations, founded newspapers and taken part in political meetings and demonstrations. तो औरतों ने अपना खुद का एक राजनीतिक संगठन बना लिया था, उन्होंने न्यूज़पेपर भी फाउंड किया था जिसको वो चलाते थे, और पॉलिटिकल मीटिंग्स में बड़े ज़ोर शोर से हिस्सा लेते थे. लेकिन इसके बावजूद they were denied their rights, women's rights. Despite this, they were denied सफरेज राइट्स. सबसे पहला राइट कौन था, वोट देने का अधिकार, वो उनको नहीं दिया गया. सो दे वर डिनाइड द सफरेज राइट्स ड्यूरिंग द इलेक्शन ऑफ द असेंबली. जब ये इलेक्शन हो रही थी, 831 मेंबर्स जो इलेक्ट हुए थे, उसमें एक भी महिला नहीं थी. दे वर डिनाइड दिस राइट्स. व्हेन द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कन्वीन्ड इन चर्च ऑफ सेंट पॉल, वीमेन वेर एडमिटेड ओनली एज ऑब्जर्वर्स टू स्टैंड इन द विजिटर्स गैलरी. और जब ये 1848 का जो ये सेंट पॉल चर्च में जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट था, तो उनमें औरतों को आने तो दिया गया, लेकिन सिर्फ एज ऑब्जर्वर, यानी देखने के लिए, दर्शक की तरह, और वो भी खड़े होके, वो विजिटर्स गैलरी में खड़े होके उन्होंने ये पार्लियामेंट को देखा. दे वर नॉट इवन अलाउड टू सिट. सो दिस गिव राइज टू अ मूवमेंट विच इज़ कॉल्ड फेमिनिज्म, है ना. तो फेमिनिज्म क्या होता है? फेमिनिस्ट वो होता है जो औरतों के अधिकारों के लिए लड़ते हैं और लोगों को जागरूक करते हैं. दे आर कॉल्ड फेमिनिस्ट. सो देयर इज़ अ न्यू वर्ड, फेमिनिस्ट.
awareness of people, women's rights and interests based on belief of social, economic and political equality of genders. तो इनका मानना क्या है, that women should have social, economic and political equality. उनको बराबरी होनी चाहिए, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये सारे, जैसे कि हम बोलते हैं कि सारे इंसान एक जैसे हैं, इक्वल हैं, तो मैन एंड वीमेन शुड ऑल्सो बी ट्रीटेड एज इक्वल्स एंड दे शुड बी गिवन इक्वल राइट्स. तो ऐसे लोगों को बोलते हैं फेमिनिस्ट. सो दिस वॉज द डेफिनेशन ऑफ फेमिनिस्ट. सो मूविंग अहेड, दो कंजर्वेटिव फोर्सेस वर एबल टू सप्रेस लिबरल मूवमेंट्स इन 1848, दे कुड नॉट रिस्टोर द ओल्ड ऑर्डर. 1848 का जो कोशिश था, भले ही जो कंजर्वेटिव्स थे वो उन्होंने उसको दबाने में, उसमें सफल हो गए, उसको दमन करने में सफल तो हो गए, लेकिन जो ओल्ड ऑर्डर था, जो पुराना जो तौर तरीका था, वो वापस रिस्टोर नहीं कर पाए, क्योंकि उनको ये डर था कि अगर वापस वो रिस्टोर करेंगे तो हो सकता है कि एक दिन फिर से ये रेवोल्यूशन हो उनके खिलाफ. सो अब उनको कुछ छूट देनी पड़ी ताकि जो है स्टेटस को बना रहे. Monarchs were beginning to realize that the cycles of revolution and repression could only be ended by granting concessions to the liberal nationalist revolutionaries. तो उनको ये समझ में आ गया था कि ये जो साइकिल है रेवोल्यूशन का और रिप्रेशन का, कभी क्रांति होती है, फिर उसका दमन होता है, फिर क्रांति होती है, फिर उसका दमन होता है, इससे बचने के लिए हमको ये जो लिबरल माइंडेड रेवोल्यूशनरीज हैं उनको कुछ छूट देनी पड़ेगी. Hence, in the years after 1848, the autocratic monarchies of Central and Eastern Europe began to introduce the changes that had already taken place in Western Europe before 1815. तो इसलिए जो 1848 के बाद जो ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज थी, जो सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप की, उन्होंने अलाउ किया वही चेंजेस को होने के लिए जो ऑलरेडी वेस्टर्न यूरोप में हो चुकी थी 1815 से पहले. Thus, serfdom and bonded labor were abolished both in Habsburg dominions and in Russia. तो इसके कारण जो सर्फडम था और बॉन्डेड लेबर थे, जो बेगारी थी और जो बंधुआ मजदूरी का जो प्रथा था, वो हैब्सबर्ग एम्पायर में और रशिया में इसको एबॉलिश बंद कर दिया गया. द हैब्सबर्ग रूलर्स ग्रांटेड मोर ऑटोनॉमी टू द हंगेरियंस इन 1867. तो जो हैब्सबर्ग एम्पायर था उसने जो हंगेरियन लोगों थे उनको और ज़्यादा ऑटोनॉमी दी. ऑटोनॉमी का मतलब होता है सेल्फ रूल, द राइट टू रूल देमसेल्व्स, है ना. उनको थोड़ा सा और अपने आप को स्वायत्त किया, इनको खुद अपना रूल्स रेगुलेशंस बनाने की स्वतंत्रता दी. तो दिस हैपेंड ड्यूरिंग एंड आफ्टर 1848 revolutions of liberals. Okay, so I'll end this topic here, and I hope you understood this topic very well. If you have any doubts, you can come back to me and ask questions. Thank you.